हे एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਸ਼ਿਕਾ ਟੰਡਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 50 MCQs ਇਨ ਜਸਟ 20 ਮਿੰਟਸ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਜੀਐਸ ਦੇ 50 MCQs ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1951 50 52 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨॉन ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NDC ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ? 12 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ, 12 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗਾ ਜੋਸਫ ਸਟੇਲਿਨਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰੈਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੈਸੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭੂਟਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਦਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਗਦੂ, ਟੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਤੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਤੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੀਪਲ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ईरान दी मजलिस, इंडिया दी संसद, कैनेडा दी पार्लीमेंट, चाइना दी नैशनल पीपल असेंबली। पिछला भी रिपीट कर लेने। अफगानिस्तान दी शोरो, ठीक है, ब्राइन दी कंसल्टेटिव कौंसल, बांग्लादेश दी जतिया पार्लीमेंट, भूटान दी सोदगू, कंबोडिया दी नैशनल असेंबली। इन्हां क्वेश्चंस दे नोट्स बना लेना ताकि तुसी हर दिन जिहड़े आपां क्वेश्चंस कर रहे हो उन्हां दे रिवीजन भी लै सको। ये नोट्स जिहड़े है तुहानूं बनाने पैणगे। मैं तुहानूं इहदी PDF नहीं अवेलेबल करवावांगी। इहदा भी रीजन है क्योंकि आई वॉन्ट कि तुसी थोड़ा जिहा हार्डवर्क करो अगर तुसी एग्जाम नूं क्लीयर करना है। ठीक है, क्योंकि PDF लै लैणे, PDF फोन दे विच पई रह जांदी है। तां प्लीज़ रिवीजन लैण दे लई नोट्स जरूर बनाना। उस बाद कोरिया नॉर्थ दी, जिवें कोरिया नॉर्थ दी सुप्रीम पीपल असैंबली किया जाता है। कोरिया साउथ दी नैशनल असैंबली किया जाता है। कुवैत लेबनन उन्हां दोनों दी जिहड़ी है पार्लियामेंट नूं नैशनल असैंबली ही कहा जाता है। दैन नेपाल दी आपां कहने नेपाल इंपॉर्टेंट है। म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साढ़े नाल पड़ोसी देश है। मालदीव्स दी भी मजलिस कहने। म्यांमार दी अगर देखोगे प्यूतू कहा जाता है। नेपाल दी फेडरल पार्लीमेंट ऑफ नेपाल। पाकिस्तान की जी पार्लीमेंट होंगी उन्हें कहने नैशनल असैंबली एंड सीनेट। इन्ने सारे याद करने की लोड़ नहीं है। जिवें जापान की डाइट है, कुछ ही इंपॉर्टेंट होंगे ने जिहड़े साडे पड़ोसी देश होंगे ने ज़्यादातर उन्होंने क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने पार्लीमेंट जरूर पता हो, जिवें बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ऑल दैट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है रिवर नर्मदा ओरीजिनेट्स फ्रॉम, जी रिवर नर्मदा है ये कितों ओरीजिनेट करती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, नासिक या सूरत। तो सब तो पहले जानो नासिक तो केड़ी आती है, नासिक तो आती है गोदावरी, ठीक है। जी गोदावरी रिवर है इनू आपां एक तरीके दे नाल दक्षिण गंगा के नाम तो जानते हैं, साउथ इंडिया की सब तो वड्डी रिवर है। उस तो बाद अपने को आंदा अमरकंटक मध्य प्रदेश जो है, राइट आंसर आएगा। नर्मदा रिवर जी है अमरकंटक मध्य प्रदेश तो आती है। एक होर रिवर का ओरीजिनेशन जो उत्थे होंदा है वो होंदा सोन रिवर, ठीक है। एग्जाम च भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोन रिवर जी है किस दी ट्रिब्यूटरी है, तो तुहानूं ये याद रख लेना है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी आ जाती है। नर्मदा रिवर, नर्मदा हो गई, तप्ती हो गई ते माही हो गई, ठीक है। ये तीनों रिवर्स जड़ियां ने इन्हों आप कहने कि वैस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये किहड़ियां रिवर है, वैस्ट फ्लोइंग रिवर। वैस्ट फ्लोइंग का मतलब की है अरेबियन सी दी ओर जाके ड्रेन होंदियां ने, राइट, याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपॉर्टेंट है। तो अमरकंटक तो जिहड़ा है आंदा है मध्य प्रदेश जिथे नर्मदा रिवर ओरीजिनल होंदी है। इत्थे एक मईकाल रेंजिस भी होंदियां ने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम च आ सकता है कि मईकाल रेंजिस जिहड़ियां ने कित्थे होंदियां ने, ये मध्य प्रदेश दे विच होंदियां ने। अगले क्वेश्चन दी ओर, जबरो एक फोक डांस है किस स्टेट का। फोक डांसेस जो होंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। रॉफ एक फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, है ना। उसी तरीके ना जबरो किहदा डांस है। जो भी जबरो की गल करते हैं ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है, चंगथांग, ठीक है, या रोंग एरियाज़ दे विच जो कि लद्दाख रीजन दे विच होंदे ने उत्थे पाया जाता है। तो जबरो जो डांस है वो लद्दाख रीजन का है, लद्दाख रीजन का। लद्दाख दे विच तुहानूं ये भी याद रख लेना है इंपॉर्टेंट जोड़ा है लेक भी पाया जाता है, उस लेक का नाम है तोसो मोरीरी लेक, तोसो मोरीरी लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर दे विच दो लेक्स पाए जाते हैं, वन इज़ दाल लेक, ठीक है, वन इज़ वुलर लेक, जो कि वुलर लेक है फ्रैश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर दे विच। उस तो बाद रॉफ जोड़ा डांस है वो जम्मू कश्मीर है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया काफ़ी पॉपुलर डांस है, काफ़ी सारे एग्जाम्स क्वेश्चन आते हैं। जबरो एंड लोसार ये लद्दाख रीजन दे विच जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पैंदा है। बाकी तुहानूं उत्तर प्रदेश के भी कुछ पता होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन दे विच सीगा। उत्तर प्रदेश के डांस है जिवें कि नौटंकी, रसीला, ठीक है, कजरी, झोरा एंड चपेली। ध्यान दे नाल देखो उत्तर प्रदेश के किहड़े है, नौटंकी आंदे क्वेश्चन बचा है, नौटंकी, रसीला, कजरी, झोरा, चपेली, ये जड़े है उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्चड इन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत के हरित क्रांति कि द्वारा कदों लॉन्च हुई सी। हरित क्रांति आई किस वास्ते सी, वीट ते राइस की प्रोडक्शन को इनक्रीज करने के लिए। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है। अगर फादर ऑफ वर्ल्ड के रेवोल्यूशन पूछे नॉर्मन बोरलॉग है, ये दो पर्सन है। तो पूछा जाए फादर ऑफ किहड़े है, MS स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। तो इत्थे लिखा हुआ है, अगर तुहानूं स्पैलिंग नहीं पता तो देखो 1960s दे विच आया सीगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड दे विच। और अगर तुहानूं पूछा जाए इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन जिहड़ा है वो MS स्वामीनाथन है। इसी साल उन्होंने जिहड़ी है डेथ हुई है, पिछले महीने ही MS स्वामीनाथन दी। उस तो बाद अपने को आंदा है नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पे, कहंदा द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल रिस्पैक्टिवली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है। जो साडा भारत का संविधान बनिया सीगा उदों किन्ने सीगा, अज दी अगर गल की जाए तो आंसर शुड बी, अगर अकॉर्डिंग टू मैं यदि गल करा ऑप्शन से तो 450 आएगा। 450 है तो 12 शेड्यूल्स है। बट जो साडा जिहड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन बनिया सीगा उदों साडे कोल किन्ने आर्टिकल सीगे, 395 तो लैके 8 शेड्यूल सीगे, ठीक है, ये गल याद रखनी है। कहंदा ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल, 20 पार्ट्स होंदे सी, 8 शेड्यूल दे विच होंदा सीगा। ते जिहड़ा साडा भारत दा संविधान सीगा, ठीक है, बनिया कदों सीगा, कंप्लीट कदों होया सी, 26 नवंबर 1949 नूं, ठीक है। एंड इनू अडॉप्ट उदों ही कर लिता गया सीगा, ठीक है। बट इसनूं जिहड़ा इनफोर्सेबल कदों किया गया सीगा, 26 जनवरी 1950 नूं, ठीक है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन दी ओर वधदे हां। अगला क्वेश्चन कहंदा द नैशनल सॉन्ग जिहदा नाम है वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग इन द पॉलिटिकल ओकेजन इन द ईयर। वंदे मातरम जो साडा नैशनल सॉन्ग है इसनूं कदों गाया गया। 1896 का सैशन सीगा इंडियन नैशनल कांग्रेस, 1899, 1892 या 1905। आंसर जिहड़ा है इत्थे आएगा ए। जिहड़े है सब तो पहले इहदे बारे कुछ डिटेल जान लो, फिर उस बाद आपां लैके चलदे हां। नैशनल सॉन्ग जिहड़ा सीगा ये संस्कृत ते बंगाली लैंग्वेज दे विच पहले लिखिया गया सीगा बंकिम चंद्र चैटर्जी दे द्वारा। ये सॉन्ग जिहड़ा सीगा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी नोवल आनंद मठ दे विच लिखिया सीगा। प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटिड हेयर 1882 दे विच,
ठीक है, ये ईयर याद रखना है, कई बार एग्जाम से आ जाता है। और कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सन्यासी ਰੈਬਲੀਅਨ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਰਿਬੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 1906 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1896 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ। 24 जनवरी 1950 की गल होंदी है, जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन होंदा है, कॉन्स्टिट्यूटेंट असैंबली जिहड़ी होंदी है वो अडॉप्ट कर लैंदी है तुहाडा वंदे मातरम नैशनल सॉन्ग। ठीक है, तो अडॉप्शन कदों होंदी है, ये होंदी है वंदे मातरम दी नैशनल सॉन्ग दी 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। फोर्थ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐਂਡ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। द स्टेट एंबलम जिहड़ा इंडिया दा अडॉप्ट किया गया कित्थों, मथुरा लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, राजगिर लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, सांची लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका या सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। आंसर तुहानूं पता ही है, डी विल बी द राइट आंसर, सारनाथ कैपिटल। जिहड़ा नैशनल एंथम एंबलम है सॉरी इसनूं अडॉप्ट कदों किया गया सी, सब तो पहली गल याद रखनी है 26 जनवरी 1950 नूं। और अडाप्शन जिहड़ी सीगी लॉइन कैपिटल दी अडॉप्ट की गई सी अशोक दे पिलर जो कि उत्तर प्रदेश के विच हुंदा है सारनाथ। तो तुहानूं एग्जाम च भी क्वेश्चन आता है सारनाथ पिलर ये कित्थे है, उत्तर प्रदेश के विच। ये पिलर जिहड़ा है मौर्यन एम्परर के द्वारा अशोका के द्वारा द ग्रेट अशोका के द्वारा जिहड़ा है किया गया सी। अशोक ने कलिंगा वॉर तो बाद ठीक है बुद्धिज़म नूं अपनाया सीगा, ये भी आपां जानांगे। और उन्होंने उत्थे जिहड़ा है 4 नोबल ट्रुथ के बारे दस्सिया सीगा। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ के बारे। अगला क्वेश्चन, द नैशनल एंथम जिसका नाम है जना गण मन वाज फर्स्ट संग ऑन, वो नैशनल सॉन्ग सीगा वंदे मातरम, ये नैशनल एंथम है, दोनों के बीच फर्क है। 25 दिसंबर 1910 एट कोलकाता, 27 दिसंबर 1911 एट कोलकाता, 20 फरवरी 1906 एट सूरत या 24 सितंबर 1910। तो आंसर इत्थे की आएगा, जिहड़ा सॉन्ग सीगा जना गण मन ये कंपोज किया गया से बंगाली दे विच। देखो जिहड़ा जना गण एंथम है ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखिया सीगा। जन गण मन अधिनायक जया है, बचपन के विच तुसीं गांदे होवोगे। तो इना हिंदी वर्सन जिहड़ा सी हिंदी वर्जन इनू 24 जनवरी 1950 दे विच अडॉप्ट कर लिया गया और इनू कलकत्ता सैशन दे विच गाया गया सी 1911 के सैशन दे विच। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 के सैशन दे विच गाया गया सी। और कंप्लीट सॉन्ग जिहड़ा है ये 5 स्टैंजाज विच हुंदे ने, 5 पैराग्राफ होंदे ने। जिहड़ा फर्स्ट स्टैंजा हुंदा है वो फुल वर्जन है तुहाडे नैशनल एंथम दा। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली किन्ने टाइम का होंदा है 52 सेकेंड्स का, ये भी याद रख लेना है। कहना जी पोस्टल सिस्टम सीगा वाज इस्टैब्लिश इन इंडिया बाय पोस्ट सिस्टम, पोस्ट स्टैम्प्स जी होंगे ने कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया सी, लॉर्ड वॉरन हास्टिंग, लॉर्ड कजन या लॉर्ड वेवलेल। ठीक है, लॉर्ड कजन बंगाल का विभाजन करते हैं, लॉर्ड वॉरन हास्टिंग की अगर आप गल करिए ये गवर्नर जनरल होंगे ने ऑफ इंडिया के। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है ठीक है, इसने जरा है प्लासी की लड़ाई ये टाइम पर हुई होंगी है। तो आंसर तुहानूं याद रखना है कि बई जो लॉर्ड क्लाइव सीगा, रॉबर्ट क्लाइव वो सीगा, ये लॉर्ड क्लाइव है। लॉर्ड क्लाइव ने 1766 के विच जिहड़ा है डिवेलप किया सीगा तुहाडा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसनूं आपां कहने हैं पोस्टल सिस्टम। ओके, एंड जिहड़े वॉरन हास्टिंग सीगे ये कौन सीगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मैं इंडिया ना बोल गई होवां गलती नाल, जिहड़े इंडिया दे हुंदे ने वो हुंदे ने विलियम बेंटिक। ठीक है, ये विलियम बेंटिक जिहड़े इंडिया दे ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है, जिहड़े बंगाल दे हैं वो वॉरन हास्टिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हाँ, द इन्फ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रोंगली अब्जॉर्ब्ड बाय, जिहड़ियां इन्फ्रारेड रेडिएशन होंदियां ने सन के द्वारा दित्तियां जांदियां ने, वो किहदे द्वारा ऑब्जॉर्व की जांदियां ने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्ट्रैटोस्फीयर जो कि धरती की सैकेंड लेयर होंदी है उहदे द्वारा जिहड़ी है ऑब्जॉर्व होंदी है ना,
ओजोन लेयर ਹੁੰਦੀ यूवी रेडिएशन ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਵਾਉਂਦਾ क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। ये गैसेज होंदियां ने जिहदे करके ओजोन दे विच होल आ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बनस जिहड़ियां ने ठीक है प्रेजेंट कित्थे किहदे करके निकलदियां ने जिहड़ी चीज़ां ठंडियां करदे हैं जिवें AC फ्रिज वगैरह उत्थों निकलदियां ने जदों इन्हां ते सन रेज पैंदियां ने क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ते ये जिहड़ियां रेज है ये टुट जांदियां ने क्लोरीन दे विच जिहड़ा है क्लोरीन जिहड़ा हुंदा है वो रिएक्ट करदा है ओजोन दे नाल तां जिहड़ा है तुहानूं ओजोन दे विच होल देखण नूं मिलदा है। और अगे वधदे हां नैक्सट क्वेश्चन दी ओर। अगला क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ द यंगेस्ट गर्ल एवर टू सैट फुट ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कहने आ। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल हिमालयाज दे विच आंदा है ग्रेटर हिमालयाज का है। तेरा नाम है तेलंगाना गर्ल जिन्हों का नाम है मालवंत पूर्णा। 10 जून 2000 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 25 ਮਈ 2014 ਨੂੰ पूर्णा ने हाईएस्ट पीक जी है माउंट एवरेस्ट की ਕੀਤੀ जस्ट 13 साल की सी तो यंगेस्ट बन गई। ठीक है कहना है द हैडक्वार्टर्स जिहड़े है ऑफ द वैसटर्न कमांड ऑफ द इंडिया आर्मी इज सिचुएटेड। जिहड़े हैडक्वार्टर्स है वैसटर्न कमांड दे इंडियन आर्मी दे कित्थे सिचुएटेड है। क्वेश्चन आया होया वैसे एग्जाम च रिपीट होने के चांसेस इहदे घट है। वैसटर्न कमांड के जिहड़े हैडक्वार्टर है पर पता होने चाहिए पंचकुला हरियाणा दे विच है। कित्थे है पंचकुला हरियाणा दे विच। कहंदा है अगला कहंदा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द GT रोड डज नॉट पास। GT रोड जिन्हों आप कहने ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड और ये जी ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किदे द्वारा जी है बनाई गई है ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। वो है शेरशाह सूरी वो है शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई है और ये शेरशाह सूरी ने बिल्ड की शाही रॉयल रोड। ठीक है टू स्ट्रैंथन द या तुसी कह लो अपने इंपायर नूं उन्हां दे टाइम ते बहुत अच्छी कम्युनिकेशन सीगी तां इन्हां ने जिहड़ा है कित्थों ये गुरदा वाराणसी इलाहाबाद अंबाला या ग्वालियर ये तुहाडे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किहड़े एरिया तो जिहड़ी है नहीं गुजरती। इस क्वेश्चन तुहानूं की सीखण नूं मिलदा है कि एग्जाम कई बार ये भी इदां दे क्वेश्चन भी आस्क कर लैंदा है। तुहानूं याद रखना है कि जिहड़ी एट प्रेजेंट ये अमृतसर तो लैके कोलकाता तक हैगी है। ठीक है तां ये दिल्ली टू अमृतसर दिल्ली टू कोलकाता इत्थे जाती है तो अपनी जड़ी है ग्वालियर वाली साइड नहीं है। ओके डी इज़ द राइट आंसर ग्वालियर वाली साइड नहीं आएगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रहन दो। एंशेंट रूट दे विच हाँ इनू कई बारी उत्तर प्रथा भी कहा जाता सीगा और उस वक्त कुशन इंपायर के एंपरर के द्वारा जी कंट्रोल की जाती सी। कुशन इंपायर के जोड़े तुहाडे कह लो फाउंडर से कनिष्क सीगे। ठीक है और ओवर दिस वेरी रूट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हाईवे बिल्ड किया सीगा जो माउथ ऑफ रिवर यानी कि गंगा नू जिहड़ा है इस इंपायर दे नाल कनैक्ट करती सीगी। ये जदों तुसीं मेरे तो एंशेंट हिस्ट्री पढ़ ही रहे हो उहदे विच तुसीं जान लोगे तो इन्नी वरी ना करना है इन्नी सारी इन्फॉर्मेशन दी। एक क्वेश्चन नहीं करांगे आपां। अगला द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्विम किया सी अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि इदा दे किहड़े इंडियन सीगे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तो जिहड़ा है क्रॉस किया तो अपना जिहड़ा आंसर आएगा उन्होंने नाम से मिहिर सेन। मिहिर सेन बस इन्ना ही जानना है। उस तो बाद हाँ एक चीज़ याद रखना मिहिर सेन जिहड़े सीगे वो मैन कैटेगरी दे विच सीगे फर्स्ट एशियन सीगे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तो जिहड़ा है क्रॉस किया। बट अगर पूछा जाए कि बेस्ट नोन फॉर बिकमिंग द फर्स्ट एशियन वूमेन की कैटेगरी से कौन सी वो आरती गुप्ता सी। ठीक है आरती गुप्ता। नवोदय विद्यालय से वर स्टार्टेड वैसे इंपॉर्टेंट नहीं आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन द मास ऑफ द मून। अगर मून के कंपैरिजन दे नाल आपां अर्थ का देखिए कितना मास जिहड़ा है वध है 40 81 91 या 61 तो तुहानूं याद रखना है कि मून का अबाउट मास है 1.2% अर्थ का मास। ठीक है तो 81 टाइम्स जिहड़ा है वड्डा है 81 टाइम जिहड़ी धरती जिहड़ी मून तो मास के मुकाबले वड्डी है। बी इज़ द राइट आंसर। पैरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कई बार इंडियन स्टेट्स भी आ जाते हैं कई बार वर्ल्ड की जोग्राफी के भी आ जाता है जिवें पैरिस जी है किस रिवर के अगे है। पैरिस की जी पैरिस कैपिटल है कि फ्रांस की। ठीक है सब तो पहला ये आईफल टावर इत्थे ही तुहानूं देखने को मिलता है। तो सीन रिवर है SEIN सीन रिवर है तो इत्थे तुहानूं ये भी पता लगता है सीन रिवर है कित्थे है फ्रांस के विच है पैरिस के विच। तो पैरिस जी है उस रिवर के उत्ते सिचुएटेड है। ब्रिज ऑफ साई इज सिचुएटेड इन ब्रिज ऑफ साइज इज सिचुएटेड इन लंडन सिडनी वेनिस या बर्लिन।
ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ MS ਧੋਨੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਦ ਓਪੀਅਮ ਵॉर, ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਨਾਈਟ ਐਂਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵॉर ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप आज की जी क्लास है तुहानू पसंद आई होवे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीगे। कल की क्लास के थोड़े जे होर अच्छे MCQs लैके आने की कोशिश करांगी। एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी लिखी हुई है ताकि मैंने ज़्यादा रिपीट ना करना पए, बहुत तेज़ी दे नाल मैं तुहानू पढ़ा देवां ते तुसीं पॉज करके अगर किसी दे स्पैलिंग देख रहे हो तो तुसीं लिख सको। ठीक है, इसी करके मैं अगली स्लाइड दे विच एक्सप्लेनेशन रख रही हाँ, नहीं तो बोल के भी समझाया जा सकता है, बट आई वॉन्ट कि तुसीं नोट्स बनाओ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत नू वेस्ट ना जान दिओ। बाकी टेक केयर, आई होप यू लाइक द क्लास। कमेंट सैक्शन जरूर दसियो कि क्लासेस किवें लगदी है। हिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू रहन गया बच्चा, मैं बीमार हो गई सी, इस वजह नहीं लै पाई। होपफुली मैं अज जी है थोड़ी हिस्ट्री की क्लास जो है लवांगी 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।